We were doing the K map. We have done its two forms, sum of product and product of sums. Now you were having some kind of the queries. I had given you the assignment from the back exercise to solve the questions which were based on K map. So I think now let me come to the back exercise in which you are having some of the queries. We'll discuss one by one. Till K map, that is section 1.4, we already have discussed. Based on all these concepts, you have to solve the back exercise question till question number, I think it's 13. 13 or 14. Yes, tell me. Are you having any kind of the doubts till question number 7? Let me know, please. I think no doubts. Now we switch to which question? Question number 10. Question number 10. I'm coming to that question. Now, prior to Excuse that, me, ma'am. yes, please. Yes, please. Can you please explain the don't do condition? Don't do. Don't do condition. I will explain that concept again by taking the example which is given in the back exercise. We'll come to that portion as well. Prior to that, some of the students are joining the class very late. From next class, I will not allow the late entries. So be on time. Prior to that, let me know, have you solved all the parts of question number 8? Or yes, please let me know regarding question number 7 and 8. Let me know, please. 8 and 9, rather. 8 and 9. Have you solved all the questions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Good, good. Now we come to question number 10. Question number 10. Yes, I'm reading out the statement. Simplify the following expressions in sum of product form and product of sum form. What are those expressions? Here we do have two parts, part A and part B. A में भी आपको एक expression given है और B में भी given है. What you have to do? You have to convert these expressions, reconvert rather, in terms of sum of product and product of sum form, and that these two forms basically will be obtained by applying K map. That means whereas we are having this kind of the expression A, we have to somehow devise the K map with the help of this expression. Once we are being able to devise the K map, it will be easier to apply to the method of sum of product and product of sum. So आपको कहाँ problem आ रही है? Basically, you are not being able to draw the K map. I think this is the problem that you are dealing with. Now, I'm going to explain you how, by whereas this expression is given, how to draw the K map. So K map के लिए what rule I told you, we have to go by that rule only. हमें वैसा ही rectangle बनाना है consisting of a number of min terms, number of cells. How many cells will be there? It will be dependent on the number of variables. हमारे पास कितने variable हैं in this question? We do have 3 variables. कौन कौन से हैं? We are talking about the A part. हमारे पास we do have 3 variables X, Y and Z. There are 3 variables. With the help of the 3 variables, how many number of cells should be there, or how many number of squares or the min term should be there? It should be 2 raised to power 3, that means 8. Now I have to draw the K map again in a similar manner as earlier we have done. So here I would like to make use of whiteboard. We'll go step by step.
So its whiteboard is opening. Now I would like to draw K map. So how many number of minterms? 2 raised to power 3. Why? Because there are the 3 variables in the given expression. So there will be total how many number of cells? 8 number of cells. So we'll write down variable x on one side and variable yz on another side. Again, we have to mention all the possible combinations. What are the possible values of x? These are 0 and 1. Similarly for yz, these are 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0. Again, corresponding to all these values, it would be better to specify its corresponding minterms. It will be easier ultimately to generate the simplified version of the Boolean expressions. Yes, Abhishek, why you joined so late? Next time I will not permit you to join so late. So be on time. So this 0, 0 will stands for y dash, z dash. Its value will be y dash, z. Its value will be y and z. Its value will be y and z dash. And its value will be x dash and x. Now what kind of the expressions we do have in front of us? अब देखते हैं हम what is the given problem in question number 10. Question number 10 में क्या बोल रहा है कि we are given a boolean expression. वो expression क्या है आपका? I think all of you can see the screenshot, this page of the book. The very first term is x dash z dash plus y dash z dash plus y z dash plus xy. हमारे पास ये एक्सप्रेशन है f will be equal to this. अब ये चीज क्या है? बेसिकली इसमें वो all those minterms are specified which are going to produce the value of the function as 1. मतलब x dash z dash भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये फंक्शन की वैल्यू 1 प्रोवाइड जनरेट कर रहा है ये मिनटर्म. y dash z dash भी 1 कर रहा है, y z dash भी 1 प्रोड्यूस कर रहा है, x y वाली मिनटर्म भी 1 कर रही है और रिमेनिंग जो भी मिनटर्म्स मिसिंग है इसमें those are producing the value as 0. तो एज जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में किया था, 8 और 9 में भी आपका क्या था कि आपका जो गिवन एक्सप्रेशन था that was expressed in terms of the summation of 0, 1, 5, 7. तो ये सारी जो डेसिमल वैल्यूज थी, ये सारी मिन टर्म्स क्या प्रोड्यूस कर रही थी? ऑल दीज वर प्रोड्यूसिंग द वैल्यू एज 1. Similarly, this is a different form of expressing the expression. मतलब the earlier this was the form where in this manner or the Boolean expression was expressed. लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? This is a different way of expressing the Boolean expression, but we have to convert it to its corresponding K map. तो in a similar manner हमें सेम इंटरप्रिटेशन करनी है. हाउ कि x dash z dash की प्लेसिंग करनी है इन द K map, वेरी फर्स्ट मिन टर्म, और उसके अगेंस्ट आपको क्या करना है कि 1 लिखना है K map के अंदर. अब x dash z dash को you have to find out in the K map. You have to go back to the K map. अब वहां जाके सर्च करो कि x dash z dash आपको क्या मिलेगा, कहाँ जाके मिलेगा.
अब देखो x डैश z डैश कहाँ है, दिस इज x डैश, और z डैश आपको यू कैन फाइंड आउट द z डैश एट टू प्लेसेस। आपको यहाँ भी z डैश मिल रहा है जहाँ पे इसके साथ y की वैल्यू y डैश है, और हेयर ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ z डैश जिसमें y जो है y है सच। सो दे आर द टू पॉसिबिलिटीज जहाँ आपको x डैश z डैश मिल रहा है। तो मतलब जहाँ भी x डैश z डैश मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द y, वहां आपको वैल्यू उस मिन टर्म की 1 को प्लेस करते चले जाना है। मतलब x डैश z डैश आपको एक जगह y के साथ मिला और एक जगह y डैश के साथ मिला। सो एट दीज टू प्लेसेस यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ दिस मिन टर्म एज 1। तो व्हाट आई विल डू, आपको यहाँ भी 1 लिखना है एंड यू हैव टू राइट डाउन 1 हियर इन दिस सेल। So this is regarding very first min term in question number 10A part. We have done with the very first min term. Now we switch to the second min term. Again I am switching back to question number 10A part. So x dash z dash को we already have placed in K map. मतलब इसके against min term जो आपकी value 1 है, we already have placed as value 1 in K map. मतलब x dash z dash जो है आपका इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू टू मिन टर्म्स जिसमें एक बार y की वैल्यू y है और सेकंड में y डैश है। मतलब x डैश z डैश y के लिए आपने 1 लिखा और x डैश z डैश y डैश के लिए 1 लिखा। नाउ वी कम टू द y डैश z डैश। अब आपको y डैश z डैश को k मैप में यू हैव टू सर्च फॉर कि आपको y डैश z डैश क्या कहाँ मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। मतलब यू डोंट हैव टू you don't have to be concerned with value of x। मतलब ये x के लिए भी और x डैश के लिए भी, दोनों के लिए आपको 1 बनाना है। किसको 1 बनाना है, y डैश z डैश को। now you will have to find for the value of y dash z dash in the k map। k map में जाओ, अब y dash z dash को सर्च करो कहाँ कहाँ पर है। एक तो ये रहा आपका y dash z dash, एक x dash के अगेंस्ट है, एक x के अगेंस्ट है। y dash z dash को ऑलरेडी यू हैव प्लेस 1, ये 1 लिखा हुआ है, तो कहाँ लिखने की नीड है आपकी, नीचे आओ। You will have to come down against x, मतलब y dash z dash में now you have to write down 1। यहाँ आप 1 लिखेंगे। So y dash z dash x dash के लिए भी 1 हो गया और y dash z dash x के लिए भी 1 हो गया। So why? Because क्योंकि आपका given equation है in question number 10A part, we are going by that equation only, we are going by that min term specified in question number 10A part। Yes, now we have done the placing of y dash z dash. Now we switch to the next min term, that is y z dash। अब आप y z dash के लिए सर्च करेंगे for both the values of x। एक जगह आपको x मिलेगा, एक जगह x dash मिलेगा, but main concern is to find out the value of y z dash। y z dash को सर्च करो आप, y z dash आपका कहाँ है, ये आपको y z dash मिला, ये आपको y z dash मिला, तो इसके corresponding x dash में you already have placed 1। So now we come to the next term, that is अब आप y z dash x के corresponding you need to place value as 1। यहाँ 1 place करेंगे। So we have done with y z dash का हो गया। Now again we come back to question number 10 and with the last term आपकी क्या x y, मतलब x y को again you will search in the k map। x y में again 2 possibilities, x y z भी हो सकता है और x y z dash भी हो सकता है। So for these two combinations आपको you have to place the value of x y as 1। Again you have to go back to the k map पे आओ। k map में आपको x y के लिए सर्च करना है। x y आपका कहाँ पर है, x आपको यहाँ से मिला। अब ऊपर की साइड y को सर्च करो कहाँ कहाँ y है। इस x के अगेंस्ट y आपको इन 2 टर्म्स में मिला, एक yz एक yz dash। yz dash में you already have placed value as 1, तो बचा क्या आपका yz। इस yz के नीचे अगेंस्ट वैल्यू x आपको क्या लिखना है, आपको 1 लिखना है। सो दिस वे वी हैव ड्रॉन द k मैप। अब हमारे पास k मैप आ गया, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको 1 की ग्रुपिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ 2। मतलब या तो 2 का ग्रुप बनाना है या 4 का ग्रुप बनाना है या 8 का ग्रुप बनाना है, एंड ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर द हायर ग्रुप, बिगर ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक द ग्रुप ऑफ 4 ones, कॉर्नर वंस। उसके लिए बनाएंगे, वी कैन सी कि हमारे कॉर्नर वाले 1 से ग्रुप बन सकता है। तो हमने एक ये कॉर्नर वाला बनाया, एक क्या मतलब बेसिकली 4 का कॉर्नर वाला ग्रुप बनाया हमने।
and we have to search. Yes, please. Yes, beta. ट्रुथ टेबल के हेल्प से भी बन सकता है ना ये? ट्रूथ टेबल फिर बनानी पड़ेगी ना बेटा, बन सकता है लेकिन ट्रूथ टेबल बनाओ तो ट्रूथ टेबल भी तो वन एंड सेम थिंग, वो भी तो आप ऐसे ही बनाओगे। ट्रूथ टेबल उस इक्वेशन से जनरेट करोगे, फिर ट्रूथ टेबल में जाओगे, फिर ट्रूथ टेबल से के मैप बनाओगे, तो व्हाई नॉट डायरेक्टली टू ड्रॉ द के मैप, जब आपको पता है कि उस इक्वेशन के अंदर ये मिन टर्म्स आ रही हैं, आपको देख के पता चल रहा है वो सारी मिन टर्म्स को यूज किया गया है जो वन प्रोड्यूस कर रही हैं, और स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ वन वन वाली मिन टर्म्स को लेके चलते हैं, और जब हम इसी के सेकंड पार्ट पे आएंगे प्रोडक्ट ऑफ सम में, तो उसमें फिर हम रिमेनिंग सेल्स की जीरोस वाली वैल्यूज को यूज करते हुए वी विल जनरेट प्रोडक्ट ऑफ सम। इज दैट ओके? एक्सक्यूज मी मैम, यस प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। मैम ये एग्जाम में ट्रुथ टेबल के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है? देखो एग्जाम में जनरली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं सिमिलर काइंड ऑफ बैक एक्सरसाइज, और आपका आई टोल्ड यू कि वंस यू आर हैविंग बूलियन एक्सप्रेशन इन योर हैंड, so easily, very easily you can generate the truth table and vice versa। मतलब ट्रूथ टेबल है तो बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं यूजिंग द के मैप, और अगर आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है यू कैन इजीली ऑब्टेन द ट्रूथ टेबल। फाइन। सो आपका ट्रूथ टेबल की फॉर्म में आता है, देन आल्सो यू कैन अप्लाई द के मैप। उसका वर्टिकली कॉलम पे फंक्शन वैल्यू पे आप के मैप को अप्लाई करते हुए you can derive the boolean expression, simplified version of boolean expression। Yes, it's feasible। Yes, any other doubt? Should I continue? मैम आई हैव अ डाउट। हाँ मैम आई हैव बोलो डाउट। बोलो बेटा। मैम इस वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली भी मतलब आइडेंटिटी से एक्सप्रेशन निकाल सकते थे ना? डायरेक्टली कैसे? मतलब बूलियन आइडेंटिटी से, मतलब डी मॉर्गन से, या फिर वो एक्सप्रेस नहीं, बात सुनो ना। कोई भी लिसन टू मी। आपका पूछा क्या गया है बेटा? निकालने में तो आप बूलियन अलजेब्रा को अप्लाई कर सकते हैं, राइट? लेकिन आपका पूछा क्या गया है? सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को यूज करना है। दैट मींस बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ के मैप। जहां भी हम सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करेंगे, सो ऑलवेज इट इज इम्प्लाइड यू हैव टू अप्लाई द मेथड ऑफ के मैप। So explicitly they are asking you to apply K-map in order to obtain that simplified version of Boolean expression। Is that okay? उसमें लिखा नहीं हुआ कि Boolean algebra से करना, नहीं तो लिखा होता। Yes ma'am। ठीक है? Any other doubt? Ma'am, I Yes. have solved it by expanding the terms, just like making available every variable in the each term by using the identity of complement y bar plus y equal to 1, like that, Okay. and then marking the equivalent number on the Carnot map। मतलब you mean to say जैसे मैं कॉम्बिनेशन उठा के कर रही हूँ, आपने y डैश जो थर्ड वेरिएबल मिसिंग है, Ma'am, just like if it is written x y z, that it means 1 1 1 1 1 1 means 7, so I marked 7 1 like that on the Carnot map। 1 1 1 you mean Ma'am, to say? excuse me. Ma'am, Yes, beta. I think he's saying that he has first converted in canonical form, then he has marked in the truth, K map. Canonical form in what manner? मैम लाइक जैसे उसने बोला कि जैसे सपोजिंगली हमारे पास वाई जेड डैश है तो उसमें एक्स मिसिंग है, तो उसमें 1 की जगह पे x प्लस एक्स डैश डाल के हमने उसे पूरा सॉल्व किया, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वी हैव यूज्ड इन द के मैप। ऐसे करो बेटा, जो आप कर रहे हो ना उसे पेपर पेन पे करके मुझे ग्रुप में शेयर करना। इज दैट ओके? Okay, ma'am। ओके, बट उसमें वी नीड टू अवॉइड अननेसेसरी स्टेप्स। दो बोथ द मैनर्स में बी करेक्ट, आपने अननेसेसरीली 2-3 स्टेप्स को एडिशनली ऐड कर दिया। अल्टीमेटली वी आर स्विचिंग टू द सेम काइंड ऑफ द के मैप। अल्टीमेटली तो आप यही स्विच कर रहे हैं ना, चाहे आपने उसमें डाल भी दी टर्म्स को। फाइन, सो वी हैव टू रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेप्स। Why unnecessarily to increase our homework to solve the same kind of the question if that can be done is in an easier manner? So is there any doubt? Should I continue with? Yes. So we were doing now we were talking about making of the groups,
पहले हमने 4 का ग्रुप बनाया, एक्सट्रीम जो वंस है, कॉर्नर वाले वंस हैं, वी हैव मेड यूज ऑफ those ones in order to make a group of 4 ones. अब now we are left with one unused one. So in order to use it again, we have to make a group of 2 ones. इसके लिए आप बनाएंगे एक और ग्रुप बनाया. I think now all of you will be able to solve this question. Is that okay? And you will be able to generate the simplified version of Boolean function. Should I proceed further or should I stop here? Let me know, please. Ma'am, I want to ask something. Beta, ask, please. Ma'am, in this K map, we are taking y, z together and x different. So, can we take x, y together and z at one side? एक मिनट, slowly ask. क्या? Again, repeat the question. Ma'am, I was In saying this- that in the previous K map, you had taken y, z together and x at one different side. Can we take x, y together and z at different side? एक मिनट. हाँ, yes, we can change the direction, or we can write down the x on the top side and y z on the down side. It hardly matters. हम x, y को भी साथ में ले सकते हैं, मतलब x, y को साथ में ले लें और z ले को. सकते. Yes, you can take. See, listen to me. Always Boolean, different kind of the Boolean expressions, different versions of the Boolean functions may be generated, and all will be working in a similar manner, but truth table for all the Boolean functions will be same. Do remember this thing. I am repeating the same thing. कि different versions of the Boolean functions may be generated, but ultimately the truth table will be unique to all the Boolean functions. That will be a different way of representing the Boolean function. अगर आप x, y ले लेते हैं, z को ऊपर ले लेते हैं, somehow, sometimes different type of the Boolean, different version of the Boolean expression may be generated, but ultimately that will be generating the same kind of the truth table, that the functionality will be same. So, but generally, I would recommend you to go by the standard norms, though the question will not be wrong at all. Even you generate the canonical form, in that case also, the question never will be wrong. But still, I will recommend you to adopt the common norms, so that from the evaluator point of view, when ultimately your answer sheets will be checked by the teachers after the exams, I suggest you to adopt the standard norms to solve the question as expressed in your book, due to the reason, because the teacher generally, it's not only one teacher will be checking your sheet. The teacher from all over DU colleges may be checking your sheets. So in that case, that teacher would be referring to your textbook, and though the concept would be right, but still, to be on safer side, adopt the standard norms. Okay? Ma'am, Yes, beta, please. ma'am, please solve the question complete. Ma'am, वो Okay. last question मैम मैच नहीं हो रही आंसर की से, तो इसलिए. Okay. Let me solve it. Now we have to obtain the simplified version. So f will be equal to. So in that case, first we talk about the corner values. So within parentheses, let me discuss. We are talking in terms of the grouping, और इस केस में अगर हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो y dash z dash is common for x dash and x. So y dash z dash आपका निकल के आएगा common within parentheses, x dash plus x आएगा, and x dash plus x will be equal to 1. We will be left with y dash z dash. इन दोनों से हमारे पास क्या आया? y dash z dash. So I directly can write down y dash z dash. Similarly, इस ग्रुप पे आते हैं. इस ग्रुप में y z dash कॉमन है, so in between the parentheses आपका क्या आएगा? x dash plus x, and x dash plus x will always be equal to 1. So we will left with y plus z dash. Y z dash. We have to go for remaining terms as well, but prior to that, तो प्लस करके हम नेक्स्ट टर्म में बाद में आएंगे. पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, इसे यहाँ लिखेंगे. इसमें क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में?
इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका z डैश. सी यू कैन ऑब्जर्व z डैश कॉमन आते ही within parenthesis y dash plus y will become equal to 1. So directly we can write down as z dash. So this, due to these corner wale ones, ultimately we are left with one term only, that is z dash. Now we deal with the second group of ones. ये आपका 2 का ग्रुप है. अब इसे हमने इसके corresponding expression लिखना है. इसके corresponding again yes, इसका corresponding कैसे लिखना है आपने कि इन दोनों मेन टर्म में ये x कॉमन है. यू कैन व्यू x कॉमन है, तो इसमें क्या है x आया, और इन दोनों में क्या निकल के आ रहा है कॉमन, y कॉमन निकल के आ रहा है इन दोनों में. यू कैन ऑब्जर्व y कॉमन निकला, इधर से x निकला, तो x y कॉमन निकला, और विद इन पैरेंथेसिस z प्लस z डैश, एंड z प्लस z डैश विल बी इक्वल टू 1. सो वी आर लेफ्ट विद x y. स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन राइट डाउन x y, and here also we can write down xy. So this is your final SOP sum of product, and the simplified version of sum of product that we have obtained by applying the K map. Is that okay? Now I switch to the product of sum for the same question. Yes, please let me know. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, Now so this question was so simple. And next, in order to deal with the product of sum, we don't have to draw one more K map. Rather, we have to deal with the same K map. I told you the whatever are the remaining min terms, those will produce value as 0. So place 0 for remaining min terms. And we have to do the grouping of remaining those min terms which are going to produce as value 0. अब इसके ग्रुप बनाओ in order to obtain the value of product of sum. आपका 2 का ग्रुप बनेगा. And one more group of 2, due to the reason 1 0 is used is left unused, so you will have to make use of this 0 in order to make the group of 2 zeros. तो आपका एक ग्रुप ये बना. Now you have to write down the expression में. Ma'am. Yes please. Yes Ma'am, beta. what we were told in the school that in SOP, for example, if we consider x, then x is taken as 1 and x dash is taken as 0. But एक in मिनट POS, hold on. क्या बोला आपने, किसको 0 किसको 1? x is taken as 1 and x dash is taken as 0. तो यही तो लिखा बेटा, x डैश को 0 ही लिया और x को 1 Ma'am, लिया. let me complete. But in POS, we take x dash as 1 and x as 0. But in K map, we use देखो x. listen, I told you ultimately ये एक notations हैं, these are only the notations. आप Yes, किसी ma'am, को I'm मान लो just asking if it is the right form to consider or not. Like, I can told use you it or not. in that जब आपको पढ़ाया गया conceptually the concepts are same, only notations are different. आपको जिस टीचर ने जिस बुक को रेफर किया उसमें ये वाली notations use हुई, but ultimately the values are same, meaning is same, only the way of representation, way of notation is to be taken as in a different manner. But as I told you, you have to adopt the standard norms, you have to go by your textbook. वो भी आपका ठीक था, ये भी आपका ठीक था. Ultimately you are generating a simplified version of the Boolean expression. It hardly matters कि आप किसी को 0 लो तो दूसरे को आप उसका complement लेके चलें. But values will remain same, 0 and 1. We are talking in terms of zeros and ones. Is that clear? No, but in K map, we use 1 for POS and as well as for SOP. एक मिनट, repeat. किसके लिए 1? एक बार repeat. I could not get. For both the forms, we use 1 in the K map. Like as you just wrote as 0 and you just mapped the thing, all the things according to that. We don't do that. तो आप क्या करते हैं POS में, क्या करते हैं, क्या करते थे? We take 1. 1 में फिर क्या करते थे? We just reverse the values and take x dash as 0, and we consider the same thing. We take 1 for all those mapping skills. Like same as we do in listen. आप उस वे से करें या इन स्टेप्स को अडॉप्ट करें, क्योंकि हम वी आर कॉलिंग इट एज f डैश. अगर हम 0 को कंसीडर करें, वी आर कॉलिंग इट एज f डैश. वी आर नॉट डिनोटिंग इट एज बाय f एंड देन वी आर टेकिंग कॉम्प्लीमेंट. उस वे से भी करके देखो, इस वे से भी करके देखो, अल्टीमेटली विल गेट द सेम वैल्यू. Okay, ma'am, I got it. And the second problem is the question says to simplify the question in SOP form, but the question is already in SOP form. So Yes. if we just- Listen. Already, if we just though it is already in simplify SOP form, but it Boolean- is not in simple.
it is not in simplified form. Fine. Oh, yes, ma'am. And basically the motive of the that book writer is to make the students aware with the concepts of SOP and POS, and that's why actually the motive is that if an expression is to be given in such a manner, how would you be able to deal with the K-map? Would you be able to draw the K-map from the given expression? Though you are absolutely correct that already it is given in SOP but not in simplified version. You got So it? we just So that simplify means with the Boolean identity. yes, we correctly. You are absolutely correct that already it is given in SOP but not in simplified version. You got it? So we So just that means simplify with the help of Boolean identities. yes, we could have done that also, and ultimately we could have generated the same expression. But I told you the motive of the book writer is to make you understand the concept of K-map by using both the forms SOP and POS, but using specifically the K-map. Okay, Clear? thank you, ma'am. Yes, ma'am. But otherwise you will be getting same answer, but in exam you will not be getting the marks accordingly. So you have to go That means by I have the to consider you what have is written in this book. right. Because they Okay, see ma'am. concepts are same. Either you have done in 12th standard or you're doing just now. The way of doing maybe that little different, but ultimately you are achieving the same thing. Okay, Yeah. ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So now we are talking about product of sum. I told you what are the ways we have here. We have to consider those terms which are going to produce as value 0. We have to make the groups in terms of the integral power of 2. 2 का group बनाना है, 4 का बनाना है, 8 का बनाना है. Here we have made 2 groups of zeros. अब now we have to generate its expression. क्या वे है? हम इसे f dash से represent करेंगे. F dash will be equal to, in a similar manner we have to write down the min term. अब देखो इसकी बात करें हम, इसके लिए min term क्या होगी? इन दोनों में आपका z कॉमन है, z कॉमन लिया और इधर से x डैश है, तो x डैश z हुआ और विद इन पैरेंथेसिस क्या बना? y डैश प्लस y, and y डैश प्लस y will be equal to 1. So we are left with x dash z. इसके corresponding हमारे पास क्या आया? We have obtained x dash z. So we have written here x dash z. And then plus. Now we deal with another group. This is another group. इसमें common क्या है आपका? ऊपर देखो top पे y dash z is common for both the terms. And whereas within parenthesis, what value will be there? X plus x dash, and x plus x dash will be equal to 1. So 1 into y dash z will be equal to y dash z. So इसके corresponding we are left with y dash z. अब ये वैल्यू किसकी आई? ये वैल्यू आई है आपके f डैश की. And now in order to get the value of f, आप क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे. So you will write down complementing on both sides. Here you will have to write down complementing. So complement both sides. Now you will have to apply De Morgan's law on right hand side. So complement on both sides. What you will be getting? F dash के complement का complement ultimately it will result in f. So f will be equal to, अब यहाँ complement करेंगे तो आप क्या करेंगे? इसका क्या बन जाएगा आपका? x dash z. De Morgan's law अप्लाई करेंगे यहाँ. x dash z plus y dash z का complement. तो अल्टीमेटली क्या वैल्यू आ रही है आपकी? सो f विल बी इक्वल टू, हियर यू हैव टू अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ. कैसे करेंगे? आपका ये कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल टर्म्स पे आ जाएगा एंड इन बिटवीन जो और ऑपरेटर है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय एंड. सो व्हाट वैल्यू विल बी देयर? इट विल बी x डैश z का कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ एंड दिस और ऑपरेटर इज रिप्लेस्ड बाय एंड.
आपका डॉट आया एंड देन y डैश z, y डैश z का कॉम्प्लीमेंट। फिर से इन बिटवीन आपका डी मॉर्गन्स लॉ होगा इन स्मॉलर टर्म्स पे, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू, अब इस पे इस सब टर्म पे आपका कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो ये जो एंड ऑपरेटर है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय और ऑपरेटर एंड दिस कॉम्प्लीमेंट विल बी इम्पोज्ड इंडिविजुअली ऑन ऑल द टर्म्स। तो क्या बन जाएगा, एक्स डैश का डैश एक्स बन जाएगा, ये आपका x बन गया, और ये एंड ऑपरेटर विल बी रिप्लेस्ड बाय और, ये आपका और बन गया, और ये आपका z का z डैश बन गया। बिकॉज वाई, बिकॉज आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो इंडिविजुअली इनर टर्म्स पे भी आ जाएगा एंड दिस एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय और आपका क्या होता है, ये प्लस वाला। There is no, this will remain dot, this will remain as such, it will remain as such। ये तो इस पे इंटरनल की बात हो रही है आपकी, तो आपका डॉट डॉट ही रहेगा। हाँ, तो आपकी नेक्स्ट वाली टर्म क्या रहेगी, y plus z dash। So this is final form, finally product of sum, this form will be called as your product of sum। Is that okay? Any doubt? Excuse me, Yes. ma'am. Yes beta। Ma'am, if we solve this question by the method used by Prakriti, then we can directly get the POS form. Then why are we complicating things, and first we are taking out the SOP form? I told you, though you can get it using Boolean algebra, because ultimately, if you observe, even if through the K-map, ultimately you are applying the identities of Boolean algebra only. No, what actually is this? Algebra. If we take x dash as 1 and x as 0, then we can directly POS form. See, there are the many forms to solve it, but here primarily we are focusing on K-map only. In that case, we will not able to illustrate the concept of K-map. You got it? Yes, yes. Manojit, why you joined too late? Let me know. Yes, Manojit, just now you joined the class. Yes, Jatin, you also joined so late. Why you are too late? This is the last warning. Those who are joining too late, I will not permit from the next class. Only 10 minutes, the time period of 5 to 10 minutes will be given. Only 5 to 7 minutes rather, to allow you to join the class. Yes, beta, I switch back to the question that directly we are not doing it, though we could have done it. And though the software engineers could have done that thing very easily directly. But here the thing is that just to illustrate the concept of K-map. Is that clear? Okay, ma'am. Okay. So this question is clear to you, to all of you. Question number 10, A part. So this way we have obtained product of sum, and earlier we have obtained sum of product. In a similar manner, you have to deal with the second question, second part, though I am not solving it here because now you will do it as a homework part. In a similar manner, you have to solve this question number 10, B part. Now tell me next doubts. Regarding question number 11, yes, have you solved it? Ma'am, excuse me. Ma'am, we have solved. मैम इन क्वेश्चन नंबर 11 मैम के मैप तो बन गया, बट मैम उसकी सॉल्व इक्वेशन मिनिमल एसओपी नहीं आ रहा है, मतलब इट्स कमिंग रॉन्ग। के मैप बना दिया मैम वो, बट इक्वेशन नहीं आ रही है। क्या इशू आ रहा है, किस का हो गया? लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 11 मैम आई हैव आल्सो डन इट। किसका हो गया बेटा? एक मिनट बेटा। हाँ, किसका हो गया बेटा? अभी किसने कहा था? संजना, you have done it, or Shivam, you have done it? You have solved question number 11, Shivam? Yes, ma'am. Shivam, can you share your screen and show it to all?
can you share your answer to all the students? I'll send the pic of the question on WhatsApp group. Is that okay, students? Is that okay? Shivam will share the answer with you on WhatsApp group, and then you again will be having Ritu also have done it. Many other students have done it. So those who have done it, share it on the WhatsApp group, and then in that case again you are having some kind of the doubt, we can discuss. And Akshit, yes, Akshit, please share your screen if you do have with you. And Kritika also have done it. Lalit also have done it. Raj, Ronak and Lalit, they have done it. Akshit is presenting this to all of you. Yes, Akshit, please explain it. And who was having the doubt? I have used it using the method Prakriti I have told about Yes, Akshit. earlier. I have used the method Prakriti told you about. I've taken x as 0 for POS and x dash as 1. And I've eliminated all the positions they have given for 1. You have used x dash as 1. But next time don't apply these kind of the notations. Though conceptually these are correct, but still I would advise you to go by x dash as 0 and x as 1. Because it may create some kind of the confusion during your evaluation of the final sheets during final exams. To some of the teachers, it may create some kind of the confusion, because to one student is making this notation, another student would be making use of different notation. It will become teacher to interpret, and it will take more time to evaluate your sheet. This is the only reason. May I can show my screen for my solution? Yes, please. Raj, Ronak, please. Akshit? Ha. Yes. Yes, please explain, Raj, Ronak. Ma'am, it's coming. My net is little bit slow. Oh, no issue. We will wait. Ma'am, just like I just expanded the number and I just retained the corresponding decimal number. Then I have marked them on the Carnot map and... Hold on. Let me show the statement first. We are talking about the statement. पहले statement को देख लेते हैं. There is a need to clearly understand the statement. हमारी statement क्या कह रही है कि simplify the following boolean expression. इसकी डेसिमल वैल्यूज गिवन है मिन टर्म्स की, और ये सारे मिन टर्म्स आपकी वन प्रोड्यूस कर रही हैं. इसे आपको के मैप पे प्लॉट करना है. तो आपने क्या किया? मैम, मैंने पहले पूरे एक्सपैंड करके मैंने उससे ऐसे किया कि सब मिन टर्म में हर एक वेरिएबल आ जाए. उसके बाद मैंने उनके कोरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर लिखे. नहीं, आपने एक मिनट कहाँ लिखा? दिखाओ एक बार. आंसर बता रहे हो. इतना कॉम्प्लिकेट question number 11. We are talking about question number 11, beta. Ma'am, but Raj is presenting for 10th B. अब 11. Right. और चलो 10th B पर आओ पहले. एक बार 10th B दिखाओ. और 10th B. बेटा इतना कॉम्प्लिकेट मत करो 10th B को. के मैप है ही आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बाय ऑब्जर्विंग and no, ma'am, I have drawn the K map. I know you have done the same thing as earlier. I have drawn it on K map. तो डायरेक्टली इसे K map पे ही इसे प्लॉट करो. इतनी सारी मिन टर्म्स को मैनुअली मत लिखो. इट विल क्योंकि हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम K map का सिग्निफिकेंस वायलेट हो जाता है ना. K map क्या कहता है कि जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द K map, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्टली यू कैन सिंप्लीफाई बाय ऑब्जर्वेशन, and directly you can write down the simplified version of the result.
ओके Ma'am, तो यहाँ Ma'am, actually, I just done that so that the examiner could understand. I know that it stand for that ठीक term. है, this is absolutely right. This is absolutely, I am not saying it is wrong. ठीक है, चलो let it go this way. अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ. Ma'am. Yes, बेटा. Ma'am, in 10th question, I have done the same way and already sent you the PDF. Should I correct it and send you again? कि आप ये जो आपने मिड टर्म्स लिखी है उसकी बात कर रहे हैं? मैम मैंने 10th क्वेश्चन मतलब मैंने PDF आपको ऑलरेडी भेज दिया और मैंने सेम वे में किया है. कोई तो बात दोबारा नहीं, भेजना है? नो लेट इट गो दिस वे. ठीक है, Okay, ma'am. अब आप क्वेश्चन thank नंबर 11 को एक्सप्लेन करो. Ma'am, I just marked up the number like that 0 on 1. First, I marked all the number. Then I first made a quad here. Then I made the quad here and the duet on the corners. Okay. And then I simply write the just like quad here. A here is adding just multiplying 1 and B is getting cancelled because 1 0, and here 1 1 C is remaining and D is getting cancelled 1 0. So I written और आप AC. हमेशा ना जस्ट मेक इट ए हैबिट की जैसे हमने मिन टर्म्स ऊपर लिखी है ना, तो मिन टर्म लिखने की हैबिट बनाओ जिससे देखते पता चल जाए. जैसे 0 0 को x डैश ये क्या A B C डैश D डैश C डैश D as I have written in the whiteboard. And for this, okay ma'am, for this quad I have written that A B bar, and here all the min terms are getting cancelled just because 0 for 0 1 and D for 0 1, just like that, and then I written that A B bar plus. Just hold on. Now who was having the doubt? Is that okay? Who was having the query regarding this? Ma'am, no, it's not okay. It's not okay. Yes, then what is your query? Ma'am, I have made the same truth table, K-map, but the expression is not coming right. It's getting confused. So, as you could have done it, क्या name है बेटा आपका? Ma'am, Ritika. है? Ritika, ma'am. Ritika, आप अपना solve question group पे भेजो. Then these students will help you to solve Okay. it. Thank you. आपका पिन पॉइंट करेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक है. Okay? So Raj Ronak and others who have solved it, though you will be rectifying her mistake whenever she will be posting it on your group. Okay? So and to all the remaining students, is that okay? Raj Ronak is showing this. Any doubt? I hope it's okay. अब ये कौन सा डायग्राम है, इसे एक्सप्लेन करो. Raj Ronak किसी को हाँ. I just made the logic diagram. हाँ, लॉजिक डायग्राम. और गिवन क्या था पहले रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन को. इसका आपको क्या करना था, आपको जनरेट करना था सम ऑफ प्रोडक्ट सिंप्लीफाइड वर्जन करना था, एंड देन यू हैड टू ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग एंड और गेट्स एंड नैंड गेट्स. ये दोनों मुझे लॉजिक सर्किट डायग्राम दिखाओ. एक्सप्लेन इट. Ma'am, for the first expression A B bar, I just connected a line for A, and for B bar I just used a NOT gate and then connected it here. Okay. This AND gate is for A B bar. Then for AC expression I just put a A wire for here and a C wire from here to and the end for the second AND gate, and this is AC. And for A bar, B bar, D bar expression, I have done the same. A So it's cannot gate. It's very simple. It's very simple to as and when the kind of the min term or is given. So by observing, you have to apply the or and gate. And now we come to the NAND gate. अब NAND gate में बताओ कैसे किया? Second part. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, we have to draw the circuit using OR and AND gates. He has used NOR gate also. नहीं, पहले वाले में NOR gate कहाँ use किया है? Not Complement. Ma'am, A part. बेटा NOR तो नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा. मैं primarily your focus is on OR and gate.
लेकिन जो एडिशनली रिक्वायर्ड है वो तो यूज होंगे ही आपके, जहाँ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो तो यूज करना ही पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, अब नैंड गेट का बताओ बेटा। मैम मैंने नैंड गेट में क्या किया है, पहले में जैसे मैंने ए बार बी बार लिया वैसे ही मैंने किया है, फिर सबके एंड गेट के आगे जस्ट उसके कॉम्प्लीमेंट लगा दिए हैं, तो वो एक Very तरीके right. से नैंड गेट Very- लग गया। उसके बाद मैंने जब और गेट्स जोड़ने से पहले उनके खुद फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिए और फिर उनका सिंप्लीफाई कर दिया वेरी डायरेक्टली। करेक्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप ऐसे करना बेटा, इसकी पिक्स जो है ना ग्रुप पे प्लेस कर देना, अगर किसी को डाउट है तो दे कैन क्लैरिफाई देयर डाउट। ठीक है मैम, आई विल पोस्ट दी माय होल असाइनमेंट पीडीएफ ऑन द ग्रुप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नो, आई थिंक द डाउट इज क्लियर। नाउ वी स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसे खुला ही रखो एक बार अपने सॉल्यूशन को। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। यस, किसी को क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है टिल? अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया है। किसी को क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है? यस, लेट मी नो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। 13 में आपका डोंट केयर है। somebody was asking to explain don't care। पहले मुझे 12 का बताओ, क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक 12 भी दिखा दो बेटा अपना। हाँ, यस 12 भी आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। यस, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसका बेटा लॉजिक डायग्राम दिखाओ। मैम यहाँ पर हल्का सा मैं मिटाना भूल गया था बस। अच्छा, इस डायग्राम को और एंड गेट को यूज करते हुए पहले डायग्राम बनाना है, और फिर नॉट गेट को, नॉट गेट है, नॉर गेट को यूज करते हुए बनाना है। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन नंबर 12। मैम 12 में हम लोग को बोला गया है कि एसओपी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 एंड 14, 15। तो मैम उसका ठीक इक्विवेलेंट होता है पाई, यानी कि उसका इक्विवेलेंट होता है पोस, अगर हम लोग 0, 1, 8, 9, 10 और 12 और 13 का निकाला है। तो जो भी मिसिंग टर्म्स है, यस, जो भी मिसिंग टर्म्स है वो 0 के लिए कॉरेस्पॉन्ड करेंगी। यस, 0 करस्पॉन्ड करेंगे, और जिस प्रकार से हम सब 1 के लिए हम लोग ये ग्रुप बनाते हैं वैसे उसी प्रकार से हमें 0 के भी ग्रुप बनाने हैं। और जैसे कि हम लोग सम ऑफ में हम लोग जस्ट वहां पर मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं दो वेरिएबल का बीच में, जैसे AC के लिए हम लोग डॉट यूज करते हैं, तो यहाँ पर उसकी जगह बस प्लस का हमें यूज करना है। जब हम लोग आपने एफ डैश नहीं लिखा? मैम मैंने डायरेक्टली लिख दिया मैम ने। नहीं, आप ऐसे, क्योंकि आपके बेटा व्हाट आई टोल्ड यू, बुक में आप पढ़ोगे पेज, बिकॉज आई एम गोइंग बाय योर बुक, जबकि मल्टीपल उसकी बुक्स के अलग अलग टाइप की बुक्स अवेलेबल है, उसमें अलग अलग वेज है, बट अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द सेम थिंग, बट द वे दैट इज एक्सप्लेन्ड इन द बुक, इट विल मेक योर थिंग्स इजियर। कॉम्प्लेक्सिटी मत बढ़ाओ अपने कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है? तो अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, पहले एफ डैश निकालना, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना, दो द थिंग्स आर सेम। यस मैम, ठीक है, हाँ अब एक्सप्लेन करो। तो पहले 0, अगर हम लोग पहले ये इस क्वाड पे आए 12, 13, 9 और 8 के लिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि A एज इट इज ही रहेगा, B 1, 0 के कारण कैंसिल हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग 0, 0 C वैसे ही रहेगा, और D 0, 1 के कारण कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको मिन टर्म्स प्लेस करनी है टॉप और लेफ्ट को, जैसे मैंने किया। ओके मैम, तो वैसे ही तो फिर A और C रहेगा, तो A और C लिखेंगे, लेकिन इस बार हम लोग सिंस ये पॉज है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो इस कारण से हम इसकी जगह मल्टीप्लाई नहीं डाल के प्लस डालेंगे। फिर जब नेक्स्ट टर्म के लिए हम लोग ये जंप करेंगे तो वहां पर हम लोग मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, एंड फिर दूसरे अगर क्वाड को हम लोग देखें तो ये 8, 9 और 0, 1 के लिए है, तो 0, 0, 1, 0, तो इस यहाँ पर 0, 1 के कारण A कैंसिल हो जाएगा और B एज इट इज रहेगा, तो B बार देन प्लस यहाँ इस रो में ठीक वैसे ही 0, 0 ऑफ C रहेगा, लेकिन D 0, 1 के कारण कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर C बार लगेगा एज इट इज। अब नाउ स्विच टू लॉजिक सर्किट डायग्राम, उसे एक्सप्लेन करो, और एंड गेट और नॉट गेट वाले को एक्सप्लेन करो, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग व्हाटएवर द काइंड ऑफ द आंसर यू आर गेटिंग।
ए प्लस सी, पहले ए प्लस सी बार का अगर एक्सप्रेशन के लिए हम ए को डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट करेंगे और सी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी नॉट गेट का यूज करके उसे और गेट में अटैच करेंगे। फिर बी बार प्लस सी बार, उसके लिए बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे नॉट गेट का यूज करते हुए और उसे एक और गेट में जोड़ेंगे, और सी बार, सी का फिर से कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेंगे और उसे एक और गेट में जोड़ेंगे। फिर ए प्लस बी बार प्लस डी बार के लिए वैसे ही ठीक हम लोग वैसे ही करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने किया है, ए के लिए यहाँ पर आया है, डी का मैंने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिया है, यहाँ पर जोड़ा है, और बी का मैंने लिया है कॉम्प्लीमेंट लेकर यहाँ एक और गेट में जोड़ा है। तो वो चारों सम टर्म के लिए मैंने और गेट का यूज किया, और फिर आखिर में सबका प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने एंड गेट का यूज करके डायरेक्टली एफ का सिग्निफाई करता है। और नॉर गेट में यूज करने के लिए मैंने ठीक पहले ही जैसे किया है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, नॉर गेट, सिंस मैंने नॉट गेट यूज किया है तो बुक में लिखा हुआ है कि नॉर गेट को फिर से और गेट में चेंज करने के लिए हमें एक बार नैंड गेट का एट द एंड यूज करना पड़ता है। तो मैंने सिंपली और गेट की जगह नॉर गेट लगा दिया, और जहां पर एंड गेट लगाया वहां पर मैंने बस नैंड गेट का यूज कर दिया। Is that okay? Any query by anybody? I think concepts are clear. Ma'am. Yes, beta. Ma'am, in the question it's written that we have to draw a logic diagram only using NOR gate. Then, but he has used NAND gate at the. नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते कि only word कहीं नहीं लिखा हुआ। You can observe कि NOR gates मतलब primarily NOR gates को use करना ही है, but other than that जितने भी required gates हैं, those will be used. सिर्फ नॉर गेट से आपका सर्किट नहीं बन सकता। Is that okay, बेटा? मैम I have drawn with 3 NOR gate. क्या कह रहे हैं? मैम मैंने NOR gate भी बनाया है पूरा। तो आप शेयर करो, you share your screen and show it to all. दिखाओ बेटा आपने किसने बनाया है, कौन अपना दिखाना चाहेगा? Yes, please. Who is Sanjana? Sanjana, please share your screen. There may be different ways to draw the same logic gates, logic circuit diagram. Again, I am repeating, there can be multiple versions of Boolean expression. There can be multiple versions of logic circuit diagram, but always there is a unique table corresponding to all. There are different ways to draw logic diagrams, all will be correct. There are different ways to obtain the simplified version of Boolean expressions, but our focus will be the most simplified version of Boolean expression. Though logically it would be correct, but truth table to all the logic circuit diagrams and to all Boolean expressions always and always will be same. Yes, दिखाओ बेटा जो दिखा रहे हो आप। Yes, please, Sanjana. Yes, explain it.
बेटा आपकी ऑडिबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा अपने माइक को चेक करो। मैम मैंने एक क्वेश्चन पे डबल कॉम्प्लीमेंट कर दिया एंड देन आई हैव ट्राइड डी मॉर्गन फ्लो। थोड़ा सा आपका साउंड क्लियर नहीं आ रही, माइक को चेक करो फिर बोलो। ए मेरे बुक ला के दे तो मैनो मॉडिस करके जो वहाँ पर है। क्या कह रहे हैं बेटा? यस संजना प्लीज एक्सप्लेन योर कॉन्सेप्ट। मैम मैंने डी मॉर्गन लॉ लगाया। ओके वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 है ना? क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है ओके। मैम फंक्शन की थी डी मॉर्गन लॉ लगाया। ओके देन एंड ऑपरेटर इज चेंज्ड बाय और ऑपरेटर। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड मैम देन आई हैव मेड द लॉजिक डायग्राम। ठीक है। Then first I have taken X and Y, and then I have taken NOR gate. Yes, other students give your comments. Is that okay? Yes, ma'am. So done in the same way. Yes, like Sanjana has done. Yes, ma'am. I have also done the same way. Okay, good. Sanjana, share your this question on the group so that Okay, ma'am. ठीक है, it should be helpful to others as well. Okay. Second वाला logic circuit diagram दिखाओ इसी का। मैम और एंड गेट। हाँ एंड गेट। इज दैट ओके? यस अदर्स प्लीज गिव योर कमेंट्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, इट अपीयर्स टू बी ओके। हाँ इट अपीयर्स टू बी ओके एंड सिंपलर वन। ठीक है, यू हैव टू शेयर इट विद अदर्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ ठीक है, गुड, वेरी गुड। नाउ वी स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। यस 13 में क्या है? सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन एफ together with the don't care conditions D in the sum of product form and product of sum. Who has done this A part? मुझे बताओ, who would like to share? Who has done question number 13 A part? Who would like to show her screen or his screen? I have done. चलो संजना दिखाओ, आपने खोला हुआ, आप दिखाओ क्वेश्चन नंबर 13 A part। ये मूव नहीं हो सकता, रोटेट हो सकता है, जस्ट राइट। आपकी ये पिक रोटेट हो सकती है। यस प्लीज आदित्य, यू वुड लाइक टू शेयर? ठीक है, आदित्य वुड चलो कंटिन्यू। संजना कंटिन्यू, आपने खोला हुआ, आप ही दिखाओ। रोटेट करो इसे इफ इट इज विजिबल। चलो एनीवे देन आदित्य यू वुड लाइक टू कंटिन्यू, आप शेयर करोगे? आदित्य आप दिखाओ। आदित्य इज विलिंग टू शेयर हिज स्क्रीन। Yes please. Now explain it step by step as some of the students were having the query कि don't care उन्हें फिर से सुनना है। So now Aditya will explain. Please explain. मैंने इसमें फर्स्ट वर्ड लिया है यहाँ पे। एक मिनट, पहले विल डिस्कस द क्वेश्चन, द गिवन स्टेटमेंट। क्या गिवन है विल डिस्कस। कि देखो वी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? द रिमेनिंग स्टूडेंट्स कैन म्यूट देयर माइक अदर देन आदित्य। प्लीज ऑल द स्टूडेंट्स अदर देन आदित्य प्लीज म्यूट देयर माइक। Some disturbance is coming. Remaining students, please mute their mics. Yes, Aditya, please explain. This is question, ma'am.
हाँ प्लीज एक्सप्लेन। इसमें मैम बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है मैम, डोंट केयर कंडीशन को भी यूज करके मैम, ठीक है। ओके ओके सम ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट है मैम एंड देन प्रोडक्ट ऑफ समथिंग। राइट राइट। तो फर्स्ट उन्होंने मैम ट्रुथ टेबल मैम के मैप बना लिया मैम इसका। मैम ये हमने के मैप बनाया लाइक दिस, हमने के मैप बनाया जैसे 0 4 ये इस तरह से। और मैम इससे हम Other students kindly mute their mic. I repeat. मैम हमने फर्स्ट मैम ये वैल्यूज मैम इससे मैम शो चेक करके मैम इसमें मैम डिस्प्ले कर दी मैम। देखिए 1 1 एंड 1 जैसे 0 1 1 3 2 एंड 8 9 8 11, ठीक है। एंड देन मैम हमने मैम डी की वैल्यूज जो है वो मैम डिस्प्ले कर दी है इसमें 5 6 11 15 एंड 5 6 11 एंड 15, ओके। उसके बाद राइट उसके बाद मैम मैंने ग्रुपिंग की है मैम एसओपी से मैम, उसमें 1 की ग्रुपिंग होगी मैम। तो मैम 1 में डी भी इंक्लूड कर भी सकते नहीं, तो मैंने 4 का पहले मैम ये क्वाड बनाया मैम, और मैम एक कॉर्नर्स लिए मैंने 4। राइट। फिर मैम इनका एक्सप्रेशन बनाया मैम, वो भी मैंने में कर दिया फॉर क्वाड 1 3 5 7 दिस 1 3 5 7 this quad, right, this expression is there ma'am. And for these corners for 0 to 8 0 0 to 8 10 sorry, this expression is there and combine the expression, this is final answer. Okay, good. I think who was having the query regarding D? Don't care. Ma'am, Yes please. ma'am, can we leave D unused if it is not required? क्या बेटा? मैम हम D को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, मतलब अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो इतनी डिस्टर्बेंस आ रही है किसके माइक्स जो अनम्यूट है। आप पूछो बेटा क्वेश्चन। मैम अगर हमें D की कहीं पर जरूरत नहीं है ग्रुपिंग में, तो हम उसे अनयूज्ड ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यस वी कैन। सिर्फ D वहीं यूज होगा जहां उसकी नीड है, अदरवाइज दे विल नॉट बी यूज्ड। लाइक देखो यहाँ 2 D's अनयूज्ड छूटे हुए हैं। फाइन, दैट दिस इज द ओनली रीजन। D will be used provided there is at least one unused 1 or 0. 1 in case of sum of product and 0 in case of product of sum. ये सिर्फ assist करेंगे, facilitate करेंगे ग्रुप बनाने में। Itself these cannot be used in made in making the independent groups. Got it? Okay, ma'am. Yes, ma'am. So I think it's clear to all of you. Ma'am? And yes बेटा। मैम आदित्य ने 1 3 5 7 का क्वाड बनाया है, बट मैंने 3 7 5 11 का बनाया है। सो इज दैट ओके? कहाँ पर है, एक मिनट रुको। थर्ड कॉलम, द थर्ड आई हैड मेड अ क्वाड्रेंट ऑफ थर्ड कॉलम। देखो both are correct. I told you the boolean expressions जो आपके मल्टीपल जनरेट हो सकते हैं, बट ट्रूथ टेबल अल्टीमेटली उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेम होगी। बट आपको जो रूल माइंड में रखना है कि ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर द हायर ग्रुप। 4 का बनता है तो 4 में जाना है, उसके बाद 2 में जाना है। इट हार्डली मैटर्स कि आपने कौन से 2 के या 4 के बनाए, वो चल जाएगा। मतलब उसको आंसर राइट नहीं कर रहा। उसे देखो किससे सिंप्लीफाइड वर्जन ज्यादा आ रहा है, आप एक बार दोनों से करके देखो। जिस इससे आ रहा है जैसे जितने ने किया। हाँ तो आप उससे करेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है टू रिड्यूस बूलियन एक्सप्रेशन डीपली, जितना भी आप कर सकते हैं। यस प्लीज। मैम 13 15 9 11 का भी एक 4 का ग्रुप बन सकता है। कैसे? 13 नहीं, ये तो प्रोडक्ट ऑफ सम में बनेगा ना बेटा। सम ऑफ की बात हाँ पीओएस में बन सकता है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे भी बना सकते हैं। तो आंसर मैम अलग क्यों आता है फिर? मतलब वो तो बेटा नहीं, फिर तो आपका सिंप्लीफाइड वर्जन ज्यादा आएगा। जितने ज्यादा ग्रुप बनाएंगे, किसी बनने वाले ग्रुप को अगर आप छोड़ देते हैं तो वो सिंप्लिसिटी को कम करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा। तो more complex means more number of logic gates will be used. So always our focus is to simplify the. मैम जितने हम बना सकते हैं उतने बनाने चाहिए ना, मतलब मैक्सिमम आपको उतने बनाने हैं, else your marks will be deducted. ओके मैम। जहां आप छोड़ोगे वहां yes of course जितनी पॉसिबिलिटी है पूरी बनानी है आपको। जितने आपके अगर फिजिबल है और आप नहीं बना रहे, then your marks will be deducted accordingly. ओके मैम। Okay. Now we come to the switch to the next question. Excuse me, ma'am. आपका next question क्या है? Yes, ma'am, is it necessary to include all the don't care cells? No, I told you
को यूज करना है। ये हमारा फोकस नहीं है कि हमें सारे के सारे डी यूज करने हैं, सिर्फ उन्हें डी को यूज करना है सो दैट जो हमारे अनयूज 1 यूटिलाइज हो पा रहे हैं या अनयूज जीरोस यूटिलाइज हो पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके मैम। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। that is based on the next concept that we have to do. Section 1.5 पे based है, we'll do that. Till this point is it clear? Ma'am, I think हाँ बोलो बेटा। we have to use the least number of don't care conditions. Is it any rule? लीस्ट नंबर ऑफ बेटा लीस्ट तो हो गया ना, जितना रिक्वायर्ड है वो लीस्ट में ही जा रहा है आपका, जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज करना है। जो अननेसेसरी डीज है उन्हें क्यों यूज करोगे? No ma'am, I was asking, suppose we are getting 2 quads, one with just in one quad we are using 2 don't care and another quad we are using 1 don't care, so it is preferable to use 1 don't care. Example दो ma'am. In the previous question only, the same in the previous question just as एक quad बन रहा है 1357 and एक बन रहा है 3757. एक मिनट रुको, जैसे 1 और एडजेसेंट आपके 3 डीज हैं, 3 डी गिवन है, सपोज 1 है और अदर देन दैट आपके 3 डी है, तो आप 4 का क्वाड नहीं बनाओगे, आपके 1 के लिए 1 2 का ही बनेगा, क्योंकि यस मिनिमम ही यूज करना है आपको डी, अननेसेसरीली डी को यूज नहीं करने। क्लियर? यस मैम। हाँ ओके, तो मतलब 1 सिंगल है और 3 एक्स्ट्रा डीज है, तो आप उसे क्वाड नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ उसका ग्रुप ही बनाएंगे, ग्रुप ऑफ 2, 1 and D. Clear? Now we come to, so should I proceed with the next topic now? I hope all the doubts are clear. तो next topic करते हैं हम. Let me share. I think you can view my PPT now. We now discuss the next topic. Next topic is full adder and half adder, or rather the combinational circuit. Hello ma'am. Ma'am, can you explain don't care condition again please? बेटा आपको क्लियर नहीं हुई डोंट केयर अभी तक? No ma'am. No ma'am. नंदिनी, आपको नहीं, क्या डाउट है बेटा बताओ? Ma'am, I am Pranjal. You are प्रांजल, सॉरी। यस प्रांजल, आपको क्या है बेटा, बताओ क्या डाउट है? मैम मुझे समझ नहीं आ रहा उसका मतलब क्या है डोंट केयर कंडीशन का। बेटा डोंट केयर का गो बाय द लिटरल मीनिंग। डोंट केयर का क्या मीनिंग है? वी डोंट केयर। डोंट केयर मीन्स वी आर नॉट कंसर्न विद द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। जिस वेरिएबल को हम डी कह रहे हैं या एक्स कह रहे हैं, डोंट केयर को आइदर रिप्रेजेंटेड बाय डी और रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, मतलब वी आर नॉट कंसर्न विद इट्स वैल्यू। फाइन, कि इसकी वैल्यू 0 है या 1 है, एंड इट मे बी यूज्ड एज पर द नेसेसिटी, एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट 1 को के ग्रुप बनाने की है, तो 1 के ग्रुप बनाने में कहीं ना कहीं अगर वो एडजेसेंट वाली डोंट केयर, साथ वाली डोंट केयर डी पड़ी हुई है हमारे सामने, या डी है, उसे कभी कभी हम एक्स भी कहते हैं, तो अगर वो पड़ी हुई है और उसकी हेल्प से हमें एक नया ग्रुप मिल के आ रहा है, तो वी हैव टू यूज दोज डोंट केयर। इसका ये मीनिंग है कि वो ग्रुप बनाने में आपकी हेल्प कर रही है, एडिशनल ग्रुप बन रहे हैं, और जितने एडिशनल ग्रुप बनेंगे उतना हमारा बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। इज दैट ओके? तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था कि कुछ मिन टर्म्स गिवन थी जिसे हम कह रहे हैं कि वो वैल्यू 1 प्रोड्यूस कर रही हैं, और कुछ मिन टर्म्स डोंट केयर को सिग्निफाई कर रही हैं। तो डोंट केयर जहां 1 के साथ साथ डी आ रहे हैं, उन्हें यूज करते हुए हमने लार्जर ग्रुप बनाए। क्यों लार्जर ग्रुप बनाए? कि हमारा बूलियन एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। और हमारा पर्पस क्या है सिग्निफाई रिड्यूस करने का? कि हमारे कोरिस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स इन ए लॉजिक सर्किट लेस हो जाए। लेस होने का मतलब हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट जो हार्डवेयर चिप बन के आएगी सिस्टम के अंदर, उसका वो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा। तो मतलब दैट मीन्स इट विल लीड टू द लेस कॉस्ट, इट विल लीड टू द लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, इट विल रिड्यूस द टाइम ऑफ द हार्डवेयर इंजीनियर्स एज वेल। इज दैट ओके? कि डोंट केयर कहाँ जाके मैम फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये कॉर्ड बन रहा है 3 Ds और एक 1 से, तो हमें वो कॉर्ड बनाना चाहिए? बेटा आई टोल्ड यू जितने रिक्वायर्ड है, मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड है उतने यूज करने हैं डी। अगर आपके पास 3 1s है, आपने एक डी यूज कर लिया, 2 1s और 2 एडजेसेंट डी है, तो आप क्वाड बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मिनिमम 2 1s है और 2 डी है, तो यू कैन गो फॉर द क्वाड।
लेकिन अगर आपके पास एक 1 और 3D है तो आई डोंट थिंक कि आप क्वाड बनाएंगे, आप 2 के ग्रुप से ही आपका पर्पस सॉल्व होगा। और आप ऐसे वाले क्वेरीज को मैनुअली सॉल्व करके देखो ना, किस केस में आपको सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन मिलता है, एंड कीप द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ कि सॉल्व सॉल्यूशन में किस दिया है, और आप इस वे में कर रहे हैं तो यू आर राइट और द सॉल्यूशन इज राइट। अल्टीमेटली आपका सिंप्लीफाइड वर्जन किससे निकल के आ रहा है, यू हैव टू गो फॉर दैट। And still you are having doubts, you can place the doubts on the WhatsApp group, and the other students whosoever will be solving, they will also place them in front of you. Is that okay? Okay, ma'am. Should I proceed? Should I now proceed with the next topic? Yes, I think ma'am. yes. No. नेट की इशू है। That is your combinational circuit. Till now we have done the logic gates. Logic gate आपका क्या है? It is nothing but the simplified form of your combinational circuit. अभी तक हमने लॉजिक गेट कौन कौन से किए हैं? एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, एंड सो मेनी अदर गेट्स वी हैव डन. Whenever we connect logic gates with each other, it will be called as a combinational circuit only. मतलब combinational circuit is nothing but a connected arrangement of all logic gates with a set of inputs, means some of the inputs will be there and some of the outputs will be derived out of it. This is a vague diagram, abstract diagram of combinational circuit. तो लॉजिक गेट्स में भी आप क्या करते हैं, कुछ इनपुट जा रहा है, कौन सा इनपुट जा रहा है? बाइनरी इनपुट जा रहा है, उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन हुई विद द हेल्प ऑफ द ट्रूथ टेबल, एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ द आउटपुट जो फिर आपका बाइनरी में निकल के आ रहा है. मीन्स अगर हम सिंपल एंड गेट की बात करें तो 2 इनपुट जाते थे आपके, उसमें एंडिंग होती थी एज पर द रूल ऑफ द ट्रूथ टेबल और द बूलियन एक्सप्रेशन. अल्टीमेटली you derive the output value in the binary form. So in a similar manner, now you're not talking about in terms of a single logic gates. Now you're talking in terms of a connected series of logic gates. मतलब that will be called as an integrated circuit or a combinational circuit. Means कुछ input जा रहा है, binary input जा रहा है, in between there is a connected series of logic gate, वो कुछ उसमें apply हो रहा है, formula apply हो रहा है, some type का logic apply हो रहा है. Yes, please. When your PPT is Yes, not beta. when your PPT is not visible. Not visible. Pin down to the speaker. Just try it and let me know. No, is it visible to all of you or not? It's visible. No, ma'am. No. Pin down to your speaker. Pin down to your It's not speaker. visible. Pin down to your speaker. बताओ बेटा, विजिबल है नहीं है, मुझे बताओ. Visible to me. और मैम विजिबल है. विजिबल है now? Let me know. Yes, ma'am. चलो ठीक है. Now I am continuing. Again I am repeating. We are talking about combinational circuit. Combinational circuit क्या है आपका? Connected arrangement of logic gates with a set of inputs and outputs. And just hold on. Just hold on. Just hold on. For a moment, please. Yes, please. I'm back. Now we are talking about combinational circuits.
connected arrangement of logic gates with a set of inputs. मतलब जो भी inputs होंगे और जो outputs होंगे, always we are talking in terms of binary form. Always the inputs are in binary form as well as the outputs are in binary form. So connected arrangement of logic gates is called as a combinational circuit. It may be a single logic gate or it may be a connected series of logic gates. Now ultimately what has to be done always we discuss the internal architectural details of computer from the hardware engineer point of view. Here specifically we'll talk about full adder and half adder. So अब जो the way we are going to talk about कि कैसे addition होती है, कैसे manually addition की जाती है binary numbers की, और ultimately how the system is going to perform, how the logic basically in the form of the integrated circuit is imbibed in the system, so that the logic gates or the combinational circuit or integrated circuit should achieve the logic. अब हम फुल एडर की और हाफ एडर की अभी बात करेंगे. दैट इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो अगर a problem is given to the hardware engineers and hardware engineers are asked to design the logical combinational circuit or integrated circuit corresponding to that application or corresponding to that problem. So how ultimately the engineer reaches to devise the combinational circuit or integrated circuit. So these are the different steps. The problem is stated. Say if you are going to talk about कि हमें binary adder या full adder या half adder के लिए एक integrated circuit obtain करना है, engineer को उसके लिए design करना है. How he will be able to design that logical circuit corresponding to the half adder or full adder. कि अगर addition हम जैसे manually करते हैं, how that is achieved with the help of the integrated circuit. So उसके corresponding अगर combinational circuit design करना है, तो what are different steps? The very first step is the problem is stated. मतलब जो भी application है, जो भी problem है, that clearly is mentioned, and then input output variables are assigned. Out of those that problem, input output variables are identified, and then corresponding to that the truth table basically shows the behavior of the logic. किसी भी logic को obtain कैसे किया जाता है, that is depicted with the help of the truth table. उसका corresponding फिर truth table device होगी. And then once we are having the truth table in our hand, तो उस truth table पे K-map apply करते हुए you can get the simplified Boolean expression. और once you are having Boolean expression in your hand, तो उसके corresponding logic circuit diagram easily can be drawn. And logic circuit diagram is nothing but what? It is the combinational circuit. It is the integrated chip. So ये जनरल ब्रॉडली आपके ये स्टेप्स होते हैं एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के. नाउ हियर वी टेक, दो these steps are not asked generally in the exam, but they may be asked because this time you will be having the open book exam. In open book exam, directly the problems will not be given to you. Some kind of the vague problems will be given to you. So because in that case, during the exams, you will be allowed to open your books. You will be allowed to search the data on the Google. So those kind of the questions will be framed so that directly you cannot copy it from Google. You can directly cannot being able to copy from your book. So some kind of the way questions may come up in your exam, but the concepts will remain same. So I advise you to do practice every day, and as and when you are attending the class, revise the lecture at your end every day and solve the back exercise question. That will be more than enough. Now we come to full adder and half adder. अब देखो पहले half adder को देख लेते हैं. Half adder क्या होता है? It is a combinational circuit. ये करता क्या है? Basically addition of 2 bits. जब हम addition of 2 bits की बात करें, तो it will be called as your half adder. 2 bits में आपका always here we talk about the addition of your binary numbers only. We are not talking about your any other integral value. We are talking only on binary number. हाफ एडर वो एक इंटीग्रेटेड चिप है, वो एक सर्किट है जो फैसिलिटेट करता है एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स. और फुल एडर जो फैसिलिटेट करेगा, अगेन इट इज द इंटीग्रेटेड चिप दैट विल फैसिलिटेट यू टू डू द एडिशन ऑफ 3 बाइनरी नंबर्स. तो 3 बाइनरी नंबर्स की जो एडिशन कर रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज ए फुल एडर. मतलब ऑल दीज आर द हार्डवेयर पार्ट. ये चिप्स हैं आपके, विल बी टर्म्ड एज ए हार्डवेयर पार्ट, फुल एडर एंड हाफ एडर.
नाउ हाफ एडर सर्किट कैसे डिजाइन होगा, उसका हाउ वी रीच टू द फाइनल लॉजिक सर्किट डायग्राम in case of your full adder, and how we reach to the full circuit diagram of this half adder. ये आपका लास्ट का लॉजिक सर्किट डायग्राम है. दिस इज द लॉजिक सर्किट डायग्राम और द इंटीग्रेटेड चिप ऑफ योर हाफ एडर. तो कैसे स्टार्ट करना है? फर्स्ट द प्रॉब्लम इज स्टेटेड. प्रॉब्लम इज स्टेटेड का क्या मीनिंग था? आई टोल्ड यू कि प्रॉब्लम इज स्टेटेड का मीनिंग है कि वो एडिशन करता कैसे है, वन एंड सेम थिंग. तो ये हम मैनुअली हमें पता है कि एडिशन कैसे हो रही है, तो दैट वी हैव mentioned in the form of a truth table. एक तो प्रॉब्लम इज स्टेटेड एंड प्रॉब्लम सिंपली हम क्या स्टेट कर रहे हैं कि हाफ एडर डज द एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स. दिस इज द बेसिकली स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट. फुल एडर क्या करेगा? फुल एडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द अरिथमेटिक सम ऑफ थ्री इनपुट बिट्स. अब नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स आर असाइंड. मतलब कौन से इनपुट वेरिएबल होंगे, कौन से आउटपुट होंगे. हाफ एडर के केस में एक्स एंड वाई इनपुट वेरिएबल्स हैं और आउटपुट क्या निकल के आ रहा है? कैरी बिट निकल के आ रहा है और एक सम निकल के आ रहा है, सम एंड कैरी. सो दीज आर योर व्हाट? These are your output variables for x and y corresponding to x and. Just hold on. I am giving a pause of 2 minutes only. I will revert back to you. So I am back. Yes, we were talking about half adder and full adder. Half adder में क्या है कि again the same thing कि input and output variables are identified. Half adder में input variables कौन कौन से हुए? x और y हुए input variable, और output variable क्या हुआ? एक तो carry bit हुआ, carry निकल के आएगी जब आप addition की बात करते हैं, और s क्या हुआ? आपका sum हुआ. तो दो बिट्स की जब एडिशन करेंगे एक कैरी बिट जनरेट होगा और एक सम बिट जनरेट होगा. अब मैनुअली अगर आप एडिशन करते हैं, पहले कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? विद द हेल्प ऑफ 2 बिट्स देयर विल बी 4 कॉम्बिनेशंस, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. और अब देखो 0 0 को ऐड करेंगे, सम क्या आया? 0. कैरी क्या आई? 0. और 0 1 को ऐड करेंगे, आपका क्या आया? सम क्या आया? 1 आया. कैरी आपकी नेक्स्ट कैरी कहाँ जा रही है? 0. 1 0 को ऐड करेंगे, कैरी आपकी 0 आ रही है, सम 1 आ रहा है. 1 1 को ऐड किया, सम 0 आ रहा है, कैरी 1 आ रही है. लेट मी शो यू द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द एडिशन विद द हेल्प ऑफ द व्हाइट बोर्ड. लेट मी शो यू so that no doubt should be there. Let me open a new board, whiteboard. I'm not being able to erase. Yes, we are talking about the addition of 2 bits. कैसे addition की जाती है? Say we have 0 0 को ऐड करना है आपने, तो कैसे एडिशन होगी? 0 0 ऐड हुआ, यहाँ आया, और इसमें से कोई कैरी होती तो वह नेक्स्ट बिट पे स्विच हो जाती. तो मतलब सम की वैल्यू आपकी 0 आई इस केस में, और कैरी इसकी 0 ही गई आगे जाके नेक्स्ट बिट के लिए, तो कैरी की वैल्यू भी आपकी 0 हुई. आप देखो एडिशन कैसे जनरली परफॉर्म करते हैं. यहाँ पर हम
टू बिट साइज के 2 वर्ड्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमने ये लिया और एक हमने ये लिया से इन दोनों की अगर एडिशन हो रही है तो हाउ विल इट बी परफॉर्म्ड? 1 और 1 क्या वैल्यू हुई? 2। डेसिमल में 2 हुआ, और डेसिमल में 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? बाइनरी में लिखते हैं हम ये 2। तो इस 0 को उठा के यहाँ लिखेंगे, ये 0 आया, और ये जो 1 है ये कैरी का काम कर रहा है, नेक्स्ट में जा रहा है। हम सिंपल एडिशन कैसे करते हैं? वी डू द एडिशन इन सिमिलर मैनर। से हमारे पास 25 एंड 67 है। हाउ वी डू द एडिशन? कैसे करते हैं? 7 एंड 5 12 हुआ। 12 को अगर आप यहाँ लिखें तो 2 विल कम हियर, 2 को यहाँ लिखेंगे, एंड 1 विल वर्क एज ए कैरी जो नेक्स्ट वाले बिट पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसकी एडिशन होगी 6 एंड 2 8 और 1 9, और रिजल्टेंट कोई कैरी हुई तो 0 आपकी फर्दर आगे चली गई। तो दिस वे वी डू द सिंपली डू द एडिशन। तो हम बाइनरी में भी इन अ सिमिलर मैनर वी आर डूइंग द एडिशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, कैसे कर रहे हैं? 0 1 1 1 1 1 आपका डेसिमल में अगर है तो क्या 2, और बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा? 1 0। तो इधर वाले बिट को यहाँ लिखेंगे, दैट विल बिकम एज द वैल्यू ऑफ एस, और ये आपका कैरी बन जाएगा जो नेक्स्ट में गया। सिमिलरली इन 3 बिट्स को ऐड करेंगे, 1 एंड 1, फिर से क्या हुआ? आपका 2 आया, 2 को फिर से यहाँ लिखा तो ये 0 समेशन में गया, और एक कैरी रिजल्ट नेक्स्ट पे प्रोसीड हो गई आपकी। सो हाफ एडर में भी कैसे हो रहा है आपका? जहां आप 1 और 1 को ऐड कर रहे हैं, इसमें आपका कैरी कितनी हुई और सम कितना हुआ? 1 एंड 1 2 हुआ आपका। 2 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, मीन्स ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, और 1 नेक्स्ट अगर कोई बिट होता तो कैरी उसके लिए चली गई, मीन्स एस की वैल्यू आपकी 0 हुई और कैरी की वैल्यू आपकी 1 हुई, प्रोवाइडेड आपके पास दोनों की दोनों 1 1 है, मतलब ये आपकी कैरी हुई। C इज इक्वल टू 1। नाउ आई एम स्विचिंग बैक टू द पीपीटी। ये देखो पीपीटी में हाफ एडर कैसे काम करता है आपका? तो मतलब 2 इनपुट वेरिएबल्स आर देयर एंड 2 आउटपुट्स आर बीइंग जनरेटेड। एक आउटपुट आपका C है, कैरी है, एंड अनदर आउटपुट इज योर सम। तो दोनों को 0 0 को ऐड किया तो आपका समेशन 0 हुआ, कैरी 0 हुई। 0 1 में समेशन 1 हुआ, कैरी 0 हुई, और 1 0 में समेशन 1 हुआ और कैरी 0 हुई। 1 1 है तो 1 1 होके 2 हुआ आपको। आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि समेशन 0 हुआ और कैरी 1 आई। अब ये आ गई, यहाँ पे ट्रुथ टेबल बन गई। अब ट्रुथ टेबल के बाद और नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है? बेसिकली यू हैव टू जनरेट द बूलियन एक्सप्रेशन। आपको क्या स्टेप्स बताए थे? आई टोल्ड यू अब ट्रुथ टेबल बन गई। ट्रुथ टेबल के बाद सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन डिराइव करना है। कैसे डिराइव करना है? अब आपको के मैप लगाना पड़ेगा। सी पर अलग से के मैप लगाना होगा, एस पर अलग से के मैप लगाना होगा। आपने सी पर के मैप लगाया तो ये आया, एस पर लगाया तो ये आया, एंड वंस यू आर हैविंग द के मैप तो यहाँ ग्रुप नहीं बन पा रहे, तो 1 1 के इंडिविजुअल ग्रुप बनेंगे। तो उसके अगेंस्ट आपने मिन टर्म्स को जनरेट किया, तो सी के अगेंस्ट एक्स वाई, सी वुड बी इक्वल टू एक्स वाई, एस वुड बी एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई। एक्स एक्सक्लूसिव और वाई बन गया। अब इन दोनों को कंबाइन करते हुए आपने एक सर्किट बनाया, ये आपका लॉजिक सर्किट डायग्राम बन गया। नाउ दिस इज द इंटीग्रेटेड चिप, दिस इज द लॉजिकल सर्किट डायग्राम फॉर द इंटीग्रेटेड चिप of half adder. So this is the way how we draw the combinational logic circuit diagram for half adder we have done with. I hope I am audible and the concept is clear to you for half adder. Let me know. Yes, ma'am. Okay. Now we switch to full adder. ये हमारा half adder का था। अच्छा, एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है, what do you mean by the combinational circuit और डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सीक्वेंशियल सर्किट। गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो आप एग्जांपल कौन सा देंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट का? हाफ एडर एंड फुल एडर। तो ये आपका इसका ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जांपल हैं। अब हम आ रहे हैं फुल एडर पर। फुल एडर का क्या फंक्शन है? आई टोल्ड यू कि एडिशन ऑफ 3 बिट्स की बात करें तो जो भी लॉजिकल सर्किट, जो इंटीग्रेटेड सर्किट इसको फैसिलिटेट कर रहा है,
that will be called as your full adder. तो इसमें भी क्या होंगे, 3 inputs are there and 2 outputs, one is your carry, another is your sum. कैसे एडिशन का काम करेंगे, 0 0 0 0 में आपका सम 0 आ रहा है, कैरी 0 आ रही है, 3 बिट्स की एडिशन की बात हो रही है, 0 0 प्लस 1, सम आपका 1 आ रहा है, कैरी 0 आ रही है. इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट यू कैन इंटरवीन मी इन बिटवीन. एंड अगर इन तीनों बिट को ऐड करें तो आपका समेशन 1 होगा, कैरी 0 है, और 0 प्लस 1 आपका फिर समेशन 0 आ रहा है, कैरी 1 आ रही है, फिर 1 प्लस 0 समेशन 1 आ रहा है, कैरी 0 आ रही है. सिमिलरली 1 प्लस 0 प्लस 1 समेशन 0, कैरी ये. और सिमिलरली लास्ट में जब जाते हैं 1 1 1 3 1s है. 3 1s मतलब अगर डेसिमल में बात करें तो डेसिमल में 3. यस बेटा प्लीज. मैम हाफ एडर में मैम लॉजिक डायग्राम नहीं समझ आया. अब पूछो क्वेरी क्या है आपको. मैम ये लॉजिक डायग्राम कैसे बनाया, मतलब ये सी और एस का हमने अलग अलग नहीं बनाया, साथ में ही बनाया. के मैप हमने अलग अलग बनाया, लेकिन के मैप अलग अलग बनाया लेकिन डायग्राम साथ में बना दिया. डायग्राम साथ में बना दिया. क्यों? क्योंकि हमारा हाफ एडर कैसे काम कर रहा था, 2 इनपुट वैल्यू जा रही थी और 2 ही आउटपुट निकल के आ रही थी. तो 2 इनपुट गए एक्स वाई की एंडिंग हो रही है तो सी निकल के आ रहा है, और सेम ही एक्स वाई एस में भी यूज हो रहे हैं, सेम इनपुट यूज हो रहा है ना. तो और एस में एक्सक्लूसिव और गेट यूज हो रहा है, तो सेम इनपुट गए तो उसमें से एस निकल के आया. इज दैट क्लियर ना? यस मैम क्लियर. ठीक है. अब हम बात करें फुल एडर की, और फुल एडर में 1 प्लस 1 प्लस 1 डेसिमल में कितना हुआ, 3. 3 को कैसे लिखा जाता है बाइनरी में, 1 1. तो एक 1 एस का काम कर रहा है, एक 1 सी का काम कर रहा है. अब हमारे पास ट्रुथ टेबल आ गई. अब ट्रुथ टेबल से हमने बूलियन एक्सप्रेशन को डिराइव करना है. कैसे करेंगे, थ्रू द के मैप. सी पे भी के मैप लगाएंगे, एस पे भी के मैप लगाएंगे, सी पे के मैप लगाया, एस पे के मैप लगाया. आप लगा के देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. दिस इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू एज एन असाइनमेंट. इसे करते जाओ, बैक एक्सरसाइज को भी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14 भी करेंगे. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर. सो कीप ऑन सॉल्विंग ऑफ योर ऑन. फाइन. सो सी के लिए आपने के मैप लगाया, एस के लिए लगाया, सी के लिए के मैप लगाते लगाते अल्टीमेटली यू आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन. एंड सिमिलरली एस के लिए लगाते लगाते अल्टीमेटली यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ द एक्सप्रेशन. यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर x प्लस वाई का डैश आ रहा है, जिसे हम डायरेक्टली इसे यहाँ डेराइव कर रहे हैं. इसका डेरिवेशन हम नीचे दिखा रहे हैं, तो डायरेक्टली उसे लिख रहे हैं. क्या लिख रहे हैं, x डैश y डैश प्लस एक्स वाई लिख रहे हैं. और इसका डेरिवेशन अगर आपको क्लियर ना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं. नाउ अब आप एक चीज और नोटिस करेंगे, सी के डायग्राम में, सी के मैप में हमने 3 और 7 का ग्रुप बना सकते थे, हम एक 2 का ग्रुप बना सकते थे, बट वी हैव नॉट मेड द ग्रुप ऑफ 2. इससे एक डिफरेंट काइंड ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन जनरेट होता सी का, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया बिकॉज इसका भी रीजन है कि अल्टीमेटली सी और एस को मिलाकर ये एक लॉजिक सर्किट डायग्राम हमारे सामने आया, और उससे अगर हम 3 और 7 को बनाते तो यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता, दो लॉजिकली दैट वुड बी करेक्ट, और वो लॉजिक सर्किट डायग्राम डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक सर्किट डायग्राम बनता. आई टोल्ड यू कि लॉजिक सर्किट बूलियन फंक्शंस के मल्टीपल वर्जन्स हो सकते हैं. सिमिलरली लॉजिक सर्किट डायग्राम के मल्टीपल वर्जन्स हो सकते हैं, बट ट्रुथ टेबल ऑलवेज विल बी 1 and 1. अब इसका क्या पर्पस है इस टाइप के लॉजिक सर्किट डायग्राम को बनाने का, बिकॉज हम चाहते थे कि सी के अंदर एक्सक्लूसिव और आए, सिमिलरली एस के अंदर क्योंकि एक्सक्लूसिव और आ रहा था. आई एम शोइंग यू द डायग्राम इन योर बुक जो फुल एडर का है. यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, बट सिमिलर काइंड ऑफ डायग्राम इज देयर. आप ये बुक पे आइए, बुक में आप देखेंगे तो बिकॉज बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आई थिंक बैक एक्सरसाइज में है या फिर कहीं और है, कि हाउ द फुल एडर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द कनेक्टेड सीरीज ऑफ 2 हाफ एडर्स. दिस इज द ओनली रीजन. अगेन आई एम रिपीटिंग, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि full adder how it can be represented in terms of 2 half adders. मतलब अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर्स के पास 2 हाफ एडर्स अवेलेबल हैं तो उन्हें कनेक्ट करके ही कैन क्रिएट अ फुल एडर. फुल एडर का वो ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन कर सकता है. दिस इज द ओनली रीजन कि आपको यहाँ पर 2 की ग्रुपिंग नहीं की गई, सो दैट कि क्योंकि हाफ एडर में एक्सक्लूसिव और गेट आ रहा था,
एंड दिस वाज द रीजन कि इसमें एक्सक्लूसिव और एस में भी आ रहा था, सी में जनरेट किया गया इंटेंशनली इसे ग्रुप ना बनाकर, एंड अल्टीमेटली to show the purpose that one full adder may be represented in the as a connected series of two half adders. नहीं तो वो लॉजिक सर्किट डायग्राम लिटिल डिफरेंट होता. लेट मी शो यू इन द बुक, दैट इज मोर क्लियरली मेंशन्ड. अब देखो बुक में आओ. मैम एक्सक्यूज मी मैम. यस यस प्लीज. कैरी क्या रोल प्ले कर रही है यहाँ पे? कैरी बेटा जब आप एडिशन करते हो, एडिशन कैसे करते हो? 2 नंबर की एडिशन करते हो. हिंदी में उसे कहते हैं नेक्स्ट. हाँ बताओ मैम. यहाँ पे फिर ये सम और कैरी का दोनों आउटपुट ऐसा क्यों मैम? आप मैनुअली कैसे करते हो? आई जस्ट नाउ आई शोड यू, लेट मी शो यू. तभी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड की हेल्प से पहले एडिशन को परफॉर्म बताया. आपको इन 2 नंबर्स को ऐड करना है. कैसे करते हो आप मैनुअली? मैथ्स में कैसे करते हो? 25 और 67 को कैसे करोगे ऐड? जैसे आप द वे यू आर डूइंग इट मैनुअली, उसी वे में हम चाहते हैं सिस्टम हमें करके दिखाए. देखो 2 बिट है x और y, 5 और 7 को आपने ऐड किया तो 7 और 5 12 हुए, राइट? आपने 12 नंबर में से 12 को एडिशन कैसे करेंगे? 2 को यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ चला जाएगा, तो 1 क्या होती है? कैरी होती है. एक आउटपुट यहाँ निकल के आया जिसे आप सम कह रहे हैं, और एक कैरी आया जो नेक्स्ट वाले बिट को ऐड करने में हेल्प कराएगा. ऐसे तो करते हैं एडिशन. यस प्लीज. ओके मैम. ओके. What is the use of combination cell? What is the use of Combination cell. combinational circuit? ये पूछ रहे हो ना? Yes, ma'am. बेटा ये आप देखो, आप एडिशन कर रहे हो, आपने मैनुअली एडिशन किया. अब कंप्यूटर कैसे एडिशन करके देगा? अंदर कोई ना कोई लॉजिक फीडेड है, कोई ना कोई हार्डवेयर पार्ट उसके लिए बनाए गए हैं, कोई चिप बनाई गई है जो आपको एडिशन करके देगा. अब वो हम क्या कर रहे हैं? हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को स्टडी कर रहे हैं. आर्किटेक्चरल डिटेल्स, इंटरनली जो सिस्टम बना हुआ है, सीपीयू कैसे काम कर रहा है, सीपीयू के अंदर कौन कौन सी चिप्स हैं. अब सीपीयू आपको एडिशन करके दे रहा है. कंप्यूटर कैलकुलेटर भी इवन आपको करके देता है, एडिशन करके देता है. कैसे करके देता है? उसके अंदर एडर्स हैं, एडर्स, हाफ एडर, फुल एडर, 2 बिट की एडिशन कर रहा है, 3 बिट की एडिशन कर रहा है. तो वो लॉजिक सर्किट कैसे बना हुआ है? तो हम वो उसे स्टडी कर रहे हैं बने बनाए सर्किट को, कि वो सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है. जैसे हम मैनुअली एडिशन करते हैं तो वो वैसे ही एडिशन कर रहा है. आर यू गेटिंग इट? प्लीज आंसर मी. Yes, ma'am. तो अब जैसे हम एडिशन की बात कर रहे हैं कि मैनुअली हम कैसे एडिशन करते हैं, हमने तो पेपर पेन पे एडिशन कर दी. 25 और 67 को 7 और 5 12, और जो उसकी 1 आया, आपका कैरी आई ऊपर गई, 6 और 2 8 और 1 9 आ गया. लेकिन अब सिस्टम को तो स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. उसके अंदर हार्डवेयर पार्ट भी डिजाइन होंगे. कौन करेगा? हार्डवेयर इंजीनियर्स करेंगे. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो उसे प्रोग्रामिंग का काम करेंगे. जो आउटर पार्ट में हाई लेवल लैंग्वेजेस में काम करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है. लेकिन जो सीपीयू को इंटेलिजेंट बनाता है, उसका ब्रेन बनाता है, उसके अंदर चिप्स डाल डाल के इंटेलिजेंट बनाया जाता है, वो कौन बनाता है? हार्डवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं. और हार्डवेयर इंजीनियर्स छोटी छोटी चिप्स को कंबाइन करते चले जाते हैं लॉजिक्स को अचीव करने के लिए. तो हम यहाँ पर फुल एडर और हाफ एडर की बात कर रहे हैं. तो वो हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया कि अगर एडिशन मैनुअली होती तो ऐसे होती, लेकिन अगर सिस्टम में उसकी एक चिप बनाई जाए तो लॉजिक सर्किट डायग्राम एक चिप है, चिप का डायग्राम है. कितने गेट्स को मिला के वो ये वाला एक बिहेवियर जनरेट किया गया है, लॉजिक को ऑब्टेन कराया गया है, एडिशन के लॉजिक को ऑब्टेन कराया गया है. वो किसकी हेल्प से? कॉम्बिनेशनल सर्किट. हम उस चिप को ही कॉम्बिनेशनल सर्किट कह रहे हैं. कॉम्बिनेशनल सर्किट की डेफिनेशन क्या है? कनेक्टेड सीरीज ऑफ लॉजिक गेट्स. मतलब 2-4 गेट्स को मिलाया और एक चिप बना दी. और वो किस वे में बनाया? एज पर द रिक्वायरमेंट. हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? कि एडिशन का काम हमें कराना है, सब्ट्रैक्शन का काम करना है, मल्टीप्लिकेशन का करना है, डिवीजन का करना है, या कोई और काम करना है. तो वो कौन कर रहा है? वो चिप कर रही है. लेकिन हमारी अभी रिक्वायरमेंट है कि हमने 2 बिट को ऐड कराना है, तो उसे हम हाफ एडर कह रहे हैं. जब वो जनरेट होकर चिप आ गई उसे हाफ एडर कह रहे हैं. और जब 3 बिट्स की एडिशन की बात कर रहे हैं तो उसे फुल एडर कह रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो हम उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं कि हार्डवेयर इंजीनियर्स ने अगर हाफ एडर बनाए तो कैसे बनाए होंगे, फुल एडर बनाए तो कैसे बनाए होंगे. इज दैट ओके?
यस बेटा, किसी ने कैरी और सम पूछा था, इज दैट ओके? शुड आई प्रोसीड? मैम यस यस प्लीज। मैम अगर हम मैनुअली करते हैं तो हमारा मेन मोटिव तो सम पर होता है, कैरी तो नेक्स्ट Yes. पे आता है मैम। लेकिन अगर हम- एक मिनट, होल्ड ऑन। यस, कैरी नेक्स्ट पे आता है, लेकिन नेक्स्ट की भी तो एडिशन करनी है, तो नेक्स्ट की एडिशन बिना कैरी के तो नहीं होगी। अभी तो हम सिर्फ 2 बिट की बात कर रहे हैं, 2 बिट, लेकिन आगे हम करेंगे 4 बिट का। अगर वर्ड है, 2 वर्ड की, ऊपर भी 4 बिट है, नीचे भी 4 बिट है, राइट? तो 4 बिट को 4 बिट में ऐड करना है, तो कैरी के बिना तो नेक्स्ट वाले बिट ऐड नहीं होंगे ना। हाँ, तो इसलिए हमने कैरी को कंसीडर किया। अभी तो हम स्मॉलेस्ट एडिशन की बात कर रहे हैं। मैम आगे फाइनल एडर, आंसर तो सम आता है, लेकिन उसमें भी क्या फाइनल आंसर सम ही आएगा? ऑफ कोर्स सम आएगा। आप 4th चैप्टर में करेंगे एडर एंड सब्ट्रैक्टर। आपके पता नहीं कोर्स में है कि नहीं है एडर एंड सब्ट्रैक्टर, वहां हम बात करेंगे 4 बिट। 2 वर्ड होंगे जो 4 बिट कैपेसिटी के होंगे या 16 बिट के होंगे, उन्हें एडिशन होगी। जैसे कितने बिट का है? 2 बिट का है, ये भी 25, 67, सिमिलरली और बड़ा नंबर हो सकता है। तो एक हम सिर्फ 2 लेवल के बिट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कैरी नेक्स्ट वाले बिट को तो ऐड होगा, पूरा नंबर तो एडिशन नहीं हो पाएगा ना विदाउट कैरी। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, शुड आई कंटिन्यू और एनी अदर डाउट? फाइन। सो आई वाज टेलिंग यू कि जो हमने चिप बनाई हाफ एडर की और फुल एडर की, उसमें एक्सक्लूसिव और जो बनाए, क्यों बनाए, उसका क्या रीजन था? ये वाला लॉजिक सर्किट डायग्राम आया, आप बुक में देखो, ये हमारा बनकर आया हाफ एडर का डायग्राम, और नीचे जाएंगे तो फुल एडर का डायग्राम। जो इक्वेशंस हमने नीचे बनाई हैं उसी को यूज करते हुए है। ये देखो, इन दोनों को देखोगे तो ये अगर सिर्फ इतने पोर्शन को उठाओगे, ये छोटे वाले पोर्शन को, तो ये भी हाफ एडर है, ये भी हाफ एडर है। तो फुल एडर में बी रिप्रेजेंटेड एज द कनेक्टेड सीरीज ऑफ 2 हाफ एडर्स। तो ये डायग्राम, अब आप, मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, क्लास ओवर कर रही हूँ, तो आप लोग ये घर पे पढ़ो। पीपीटी आई ऑलरेडी हैव शेयर्ड विद, इफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ द डाउट्स यू कैन डिस्कस विद मी, बट उसे माइन्यूटली खुद सॉल्व करो। इज दैट ओके? शुड आई गो फॉर अटेंडेंस नाउ? Is that okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Now I am exiting the class and I will take your attendance first.